ناظرین آداب، عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے حدیث مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک بن نوح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تین طرح کے ہیں، اللہ کا ہاتھ جو سب سے اوپر ہے، دینے والے کا ہاتھ جو اس کے بعد ہے، اور لینے والے کا ہاتھ جو سب سے نیچے ہے، لہذا جو ضرورت سے زائد ہو اسے دے دو اور اپنے نفس کی بات قطعی نہ مانو۔ حدیث مبارکہ ابو داؤد۔ اب نظر ڈال دیں ہیڈ لائنز پر۔ عوام ٹی وی نے صدر ضلع جمعیت العلماء حافظ محمد لائقہ کو فخر نظام آباد ایوارڈ پیش کیا تھا۔ مولانا جعفر پاشا حسامی نے ان کو نظام آباد کا ہیرو کہتے ہوئے عوام ٹی وی کے موقف کی حمایت کی۔ مکہ مسجد میں 40 دن تک نماز فجر ادا کرنے والے کمسن بچوں کے لیے انعامی پروگرام۔ بے شمار بچوں نے باقاعدگی سے نماز ادا کی۔ ہاتھ میں فریکچر کے باوجود بلا ناغہ نماز فجر ادا کرنے والے محمد فرقان سب کی مرکز نگاہ بنے۔ سڑک حادثات کے تناسب میں اضافے پر ضلع کلکٹر نظام آباد کی تشویق۔ انہوں نے کہا کہ پرخطر علاقوں کی نشاندہی کی جائے اور حفاظتی انتظامات کرتے ہوئے عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ٹریفک قوانین پر سخت عمل آوری کی جائے۔ دیا نظام آباد درگا پرساد کا دورہ موضع دباغ۔ انہوں نے ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پروگرام کے تحت جاری تعمیری کاموں کا لیا جائزہ اور سہولتوں کی تفصیلات معلوم کی۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عوام ٹی وی نے صدر ضلع جمعیت العلماء حافظ محمد لائقہ کو فخر نظام آباد ایوارڈ پیش کیا تھا۔ مولانا جعفر پاشا حسامی نے عوام ٹی وی کے موقف کی حمایت کی اور حافظ محمد لائقہ کو ہیرو قرار دیا۔ ثناء اللہ خان نے بھی ان کی زبردست ستائش کی اور نظام آباد کا قیمتی اثاثہ قرار دیا۔ صدر ضلع جمعیت العلماء حافظ محمد لائق خان اپنی بے باک و جرات مندانہ خدمات کی وجہ سے عوام میں نمایاں مقام حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ عوام ٹی وی نے جوہر شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام ٹی وی کے 8 سالہ جشن کے موقع پر ان کو فخر نظام آباد ایوارڈ پیش کیا اور اب تمام احباب ان کو فخر نظام آباد کہنے کو لازمی سمجھنے لگے ہیں۔ معاملہ بودے پلی کی مکان کا ہو، نوے پیٹ کی مسجد کا، مسلم نوجوانوں کی NIA میں گرفتاری کا ہو یا بن لادن معاملے میں بیجا گرفتاریوں کا ہو یا پھر آسام کے ریلیف فنڈ کا معاملہ ہو، ہر جگہ حافظ محمد لائق خان پیش رہے ہیں۔ کئی حساس و سنگین معاملات میں انہوں نے کل جماعتی ہم آہنگی کو بھی یقینی بنایا اور قدیم کلیکٹریٹ کی مسجد کی اراضی کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ سے اعلیٰ عہدیداروں کو نوٹس بھی جاری کروا دی۔ 26 فروری کو مکہ مسجد مصلیان کی جانب سے کمسن مصلیوں میں سائیکلوں کی تقسیم کے موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے مولانا جعفر پاشا حسامی بھی بے ساختہ حافظ محمد لائق خان کی تعریف پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے حافظ محمد لائق خان کو نظام آباد کا تیزی سے ابھرتا ہوا ہیرو قرار دیا اور ان کی زبردست ستائش کرتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ اسی طرح نوجوان سماجی اور بیارس قائد ثناء اللہ خان نے بھی بے ساختہ حافظ محمد لائق خان کی ستائش کی اور ان کو ضلع نظام آباد کے بے باک و انمول اثاثہ اور فخر نظام آباد قرار دیا۔ ابھی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا لائق صاحب ماشاءاللہ یہاں کے ہیرو ہے آج کے ہمارے، اور نوجوان ہیرو میں ایک ہیرو یہ بنے ہیں۔ اللہ ان سے جو کام لے رہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے میاں، فوٹوؤں کے واسطے یہ بندہ کبھی کام نہیں کرا۔ یہ بندے کو میں تقریباً 20 سال سے جانتا ہوں، 20 سال میں میں نے کبھی بندے کو فوٹو کے لیے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج کل تو ہمارا طریقہ ہو گیا، سورئی لے رہے ہیں فوٹو کھینچ رہے ہیں، گلاس دے رہے ہیں فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ ارے کیا ہے رے باپ، گلاس دیا ہوئے مولانا، فوٹو نہیں لینا اس کی۔ لوگوں کی ڈسٹریبیوشن کا ہے، انعامات کا ہے۔ اس کے علاوہ نظام آباد الحمدللہ ہمارے قائد اور ہمارے نظام آباد کے ایک جیسا مولانا نے کہا ہیرو ہے، ہم ان کو ہیرو سے بڑھ کے مانتے ہیں اور ان کے جو خدمات ہے وہ سارا نظام آباد دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ
हम चाहते हैं कि इनके खिदमात के अंदर मजीद इजाफा हो और अल्लाह ताला इनके काम के अंदर बरकत लाए। तो मैं चाहता हूं कि एक मौका मिल गया कि हम चाह रहे हैं कि एक छोटा सा बुके ही है, सही है, मगर ताकि ये नौजवान नस्लों को, ये मासूम बच्चों को ये मालूम हो कि जिस तरह हमारे सफदर भाई, समीम भाई ये मेहनत कर रहे हैं आपको मस्जिद लाने के लिए, हमारे हाफिज लईक साहब ये मेहनत कर रहे हैं कि हमारे जितने मसाजिद जो बंद पड़े हुए हैं, जिनको लोगों ने, जो लोग भूल चुके हैं, उनको कायम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये दो लोग, सफदर साहब, समीम भाई और इनकी टीम, और हाफिज लईक साहब और इनकी टीम हमारे लिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल को आप यहाँ से लेकर जाए, इनके हक में दुआ करें। मक्का मस्जिद में 40 दिन तक नमाज फज्र अदा करने वाले कमसीन बच्चों को इनामी तरगीब दी गई थी। बेशुमार बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद भी बाकायदगी के साथ नमाज फज्र 40 दिन तक अदा करने वाले मोहम्मद फुरकान मरकज़े निगाह रहे। मोहम्मद आसिफ डीजे के फर्जंदान भी बाकायदगी से नमाज अदा करने वालों में शामिल। मुसल्लियाने मक्का मस्जिद की जानिब से कमसिन बच्चों को नमाज की तहरीक देने के लिए एक मुनफरिद व बेमिसाल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था और 40 दिन तक बिला नागा फजर की नमाज अदा करने वाले बच्चों को साइकिलों का तोहफा पेश करने का ऐलान किया था और 40 दिन बाद इनामी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिनमें बाज़ कमसिन बच्चों का मुजाहिरा नाकाबिल यकीन व काबिल सताइश था, जिनमें एक नाम मोहम्मद फुरकान का भी है जो मोहम्मद अहमद के पोतरे और मोहम्मद इब्राहिम के फर्जंद हैं। मोहम्मद फुरकान को इस दौरान हादसे का सामना हुआ और उनके हाथ में फ्रैक्चर भी आ गया था। मुंतज़मीन ने उनको चंद दिन आराम करने की तलकीन की और उनकी हाजिरी को मुसलसल दर्ज करने का भी तयख्खुन दिया, मगर ये कमसिन बच्चा उसके लिए राजी नहीं हुआ और बावजूद शदीद दर्द के वो बाकायदगी के साथ अपने फ्रैक्चर हाथ के साथ फजर की नमाज बाकायदगी के साथ बाजमात अदा करता रहा, जिस पर वो न सिर्फ साइकिल के इनाम का मुस्तहिक बना बल्कि साथ ही उसको तहरीकी व तरकीबी इनामात भी पेश किए गए और इंतजामिया ने उसके वालिदैन को दिली मुबारकबाद भी दी। उसी तरह डीजे आसिफ के फर्जंदान अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम और मोहम्मद सोहेब ने भी बाकायदगी के साथ मक्का मस्जिद में 40 दिन तक फजर की नमाज अदा की और इनाम के मुस्तहिक बने। ये कमसिन बच्चे भी अंधेरे की परवाह न करते हुए रोजाना मस्जिद का रुख करते और दर्स व तदरीस और इनामी मुकाबलों में भी शिरकत करते। बाज़ वक्त वालिदैन उनको छोड़ने आते तो कभी वो तीनों तन्हा ही मस्जिद को पहुंच जाते। मुंतज़मीन ने उन बच्चों के इस मुखलिसाना जज्बे की पुरजोर सताइश की। वजीर आला के दौरे बांसवाड़ा के पेश नजर कॉर्पोरेटर गड़गुर रोहित की गिरफ्तारी। साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम ने मजम्मत की, कहा कि जमहूरी अक़दार की खिलाफ वर्जी करते हुए अवामी आवाज को दबाया जा रहा है। साबिक सदर जिला औकाफ व क़ायद कांग्रेस जावेद अकरम ने नौजवान कांग्रेसी कॉर्पोरेटर गड़गुर रोहित के त्रिटाउन पुलिस स्टेशन की जानिब से गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर आला केसीआर बांसवाड़ा का दौरा कर रहे, उनके दौरे के पेश नज़र रोहित की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि मुकामी मुंतखबा कायदीन अपनी नाकामियों के मंजर-ए-आम पर आने से रोकने के लिए पुलिस के जरिए गड़गुर रोहित को गिरफ्तार करके अवामी मसाइल को दबा देने की जाबिराना कोशिश कर रही है, जो कि जमहूरी अक़दार के मुनाफी है। निज़ामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 38 के गड़गुर रोहित कुमार को त्रिटाउन पुलिस ने उनके घर से जो अरेस्ट किया है, हमने पुलिस डिपार्टमेंट से मालूमात किए कि गड़गुर रोहित को अरेस्ट करने की वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि कल कामारेड्डी ज़िले में बांसवाड़े में हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो बीआरएस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल बांसवाड़े का दौरा कर रहे हैं। तो वहाँ बांसवाड़े के चीफ मिनिस्टर के दौरे के इंतज़ामात में हमने तमाम निज़ामाबाद के पुलिस महकमों से, आला ओहदेदारों से एक मीटिंग रखी थी। तो वो मीटिंग में पुलिस डिपार्टमेंट में और दूसरे महकमों में ये बात चली कि कल चीफ मिनिस्टर के दौरे बांसवाड़े में जो चीफ मिनिस्टर दौरा कर रहे हैं कामारेड्डी ज़िले में, तो अगर वहाँ पर अवाम की मसाइल के बारे में जो निज़ामाबाद ज़िले के एमएलएस, मिनिस्टर, चेयरमैन अवाम की कोई मसाइल को हल नहीं कर रहे हैं, तो
तो गड़गू रोहित ने कल चीफ मिनिस्टर के पास आकर हमारी शिकायत ना करे, तो उन्होंने पुलिस की मदद ली, पुलिस डिपार्टमेंट की मदद ली और निज़ामाबाद ज़िले के कमिश्नर साहब और तमाम पुलिस के डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि आप एक ऐसे शख्स को अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं जो शख्स हमेशा कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हो, बाहर हो, कॉरपोरेशन के बाहर हो, अवाम के बारे में लड़ने वाला वाहिद गड़गू रोहित कुमार जो कॉरपोरेटर है, नौजवान लड़का है, वो अवाम के मसाइल लेकर हमेशा आपके चीफ मिनिस्टर के साथ सामने और आपके बल्दिया मिनिस्टर केटीआर साहब के सामने आकर यहाँ पर अवाम के मसाइल के ताल्लुक से बात करने के लिए उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। तेलंगाना कूलर मेले का अब्दुल खादर मालिक निजाम पैलेस के हाथों इफ्तिताह। मुफ्ती अब्दुल मुबीन ने दुआ की। मालिकीन नजमुद्दीन शजी और मोहम्मद रफी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। बोधन रोड पर नटराज टाकिस के उखबी हिस्से में तेलंगाना कूलर मेले का मोहम्मद अब्दुल खादर मालिक निजाम पैलेस फंक्शन हॉल के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से नवीद इकबाल सदर जिला अखिलती सेल BRS, इमरान शहजाद सदर सिटी अखिलती सेल BRS, अहमद अब्बू सईद उर्फ आजम सेठ मालिक जनता शामिल फुलांग, अबूद बिन हमदान यूथ लीडर कांग्रेस, अब्दुल अजीज उर्फ अज्जू मालिक क्रेशर के अलावा दीगर शरीक थे। तेलंगाना कूलर मेले के मालिक व मुंतजिम नजमुद्दीन शजी और मोहम्मद रफी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर अब्दुल मुखीद पार्टनर तेलंगाना कूलर मेला और MR कूलर मेला भी मौजूद थे। मुफ्ती अब्दुल मुबीन ने इस कूलर मेले में खैर बरकत और बाइज्जत कारोबार के लिए दुआ की। मोहम्मद रफी ने बताया कि इस साल 2 मुकामात पर कूलर मेले का एहतमाम किया गया है, जहां फायर और आयरन बॉडी के 2 फीट से 5 फीट तक के कूलर वाजबी दामों पर गारंटी के साथ फरोख्त किए जा रहे हैं। उन्होंने खिदमत से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। टेलर्स डे के मौके पर टेलर्स की रैली और जश्न आजम रोड पर हारिस जिंदानी ने रैली का इस्तकबाल किया और टेलर्स डे की दिली मुबारकबाद दी। टेलर्स डे के मौके पर निजामाबाद शहर के टेलरों ने एक शानदार रैली का एहतमाम किया और अपने जोश व मसरत का इजहार किया। हर साल 28 फरवरी को टेलर्स डे का एहतमाम किया जाता है और तमाम ही तबकात व मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले टेलर्स इस दिन जश्न का एहतमाम करते हैं। आज भी ये रैली निकाली गई। आजम रोड पर KMC बटन स्टोर के मालिक हारिस जिंदानी ने इस रैली का इस्तकबाल किया और रैली के टेलर्स शुरा में शरबत की तकसीम की और पानी के पैकेट्स भी सरबराह किए। इस मौके पर टेलर्स यूनियन के कायदीन को गुलदस्ते पेश करते हुए हारिस जिंदानी ने तमाम टेलर्स बरादरी को टेलर्स डे की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि टेलर्स मुआशरे की अहम ज़रूरत की तकमील करते हैं और इंसानों की सतरपोशी के लिए लिबास की तैयारी का अहम काम अंजाम देते हैं। आज 28 फरवरी टेलर्स डे है। मेरू जो है आज रैली निकाले, जो भी रैली निकाले उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। और जो भी टेलर है, लेडीज़ टेलर, जेंट्स टेलर और मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ये टेलर्स डे है, इंशाल्लाह सबको जो है मेरी तरफ से मुबारकबाद। हम टेलर KMC बटन स्टोर की तरफ से हम लोग हमेशा सर्विस देते आए हैं। सिलाई मशीन में होने दो, अस्तर में होने दो, टेलरिंग मटेरियल की हर आइटम में हमारे पास जो है आपको सर्विस मिलती है। मधुरा कोट्स का धागा है, कोट्स कामिटो, मून, स्पेट, बेल्ट रोल, पट्टी रोल, सोबिया मशीन, हमारी खुद की मशीन सोबिया है, हमारी खुद की डीलरशिप। आपको जो है ना हर आइटम टेलरिंग का एक हब बोल सकते हैं हमारी दुकान को। और हम जो है रोज बरोज हादसा की बढ़ती हुई शरह के बाद लाखों कीमती जानें ज़ाय हो रही है, जो कि लम्हा फिक्र है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का रोड सेफ्टी कमेटी के इजलास में खिताब। उन्होंने सड़क हादसा की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम की हिदायत दी। शहर के जदीद कलेक्ट्रेट में कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में पुलिस मुलाजिमीन, RNB ओहदेदार, पंचायत राज ओहदेदार, जिला तिब्बी महकमा, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ओहदेदार व दीगर महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हुकाम को जिले में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत दी और बताया कि जिले में सड़क हादसात के इलाकों की निशानदही की जाए और बचाव के इक़दाम किए जाए, जिसके लिए मुताल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों को बाहमी राब्ते में काम करना चाहिए। जिन सड़कों और इलाकों में हादसात होते हैं उनकी निशानदही की जाए और फौरी तौर पर कंट्रोल के इक़दाम करें और ट्रैफिक क़वानीन के बारे में आवाम को मालूमात फराहम करे। और मजीद बताया कि रोड कलवर्ट्स वाले इलाकों में रात के वक्त हादसात का खतरा होता है।
उनकी रोकथाम के लिए इशारे लगाए जाए। गुज़िश्ता इजलास में मुताल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों को हिदायत की गई थी कि वो ओहदेदारों की निशानदही करदा उमूर पर फौरी कार्रवाई करें। पंचायत राज, रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट और नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट को मुश्तरका तौर पर हादसे के इलाकों की निशानदही करनी चाहिए और इसे हादसे से पाक जिला बनाने के लिए इक़दामात करना चाहिए और महकमा पुलिस भी हादसात की रोकथाम के लिए ताउन करे। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। मौजा दुबाक के सरकारी स्कूल्स का डीओ दुर्गा प्रसाद ने दौरा करते हुए जायजा लिया और स्कूल्स में तलबा को दी जा रही सहूलतें, तालीम व दीगर तफसीली मुआयना किया और बताया कि रियासत तेलंगाना में सरकारी स्कूलों का म्यार खानगी स्कूलों के मसावी हो चुका है और देहातों में तालीम हासिल करने वाले तलबा शहरी स्कूलों से मुसाबिकत कर रहे हैं। दरपली मंडल मौजा दुबाक के जिला परिषद हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल का डीओ दुर्गा प्रसाद ने दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल्स में मनाउरो मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत किए जा रहे कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा से दी जा रही तालीम के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। इस मौके पर ग्राम पंचायत मेंबरान और वीडीसी मेंबरान ने स्कूल्स में असातिज़ा के लिए डीओ दुर्गा प्रसाद से बात की, जिस पर दुर्गा प्रसाद ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के इल्म और उनके तवज्जो दहानी कराने का तयक़ुन दिया। बाद अज़ां डीओ दुर्गा प्रसाद ने बताया कि रियासती हुकूमत सरकारी स्कूल्स में तलबा को मियारी तालीम फराहम करने के लिए बेशुमार इक़दामात कर रही है और मनाबड़ी मनाउरू प्रोग्राम के तहत तमाम सरकारी स्कूल्स में मरम्मती कामों को किया जा रहा है और तलबा को तमाम तरह की सहूलतें फराहम की जा रही है। उन्होंने हेड मास्टर को हिदायत दी कि स्कूल के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मिल किया जाए और वीडीसी मेंबरान को बताया कि आने वाले तबादलों के दौरान 3 असातिज़ा को डिप्यूटेशन पर भेजा जाएगा और स्कूल्स में बहुत जल्द 10वीं जमात के लिए खुसूसी क्लासेस चलाई जा रही हैं। तलबा इन क्लासेस से इस्तेफादा हासिल करे और इम्तिहानात में बेहतर मुजाहरा पेश करे। इसके बाद उन्होंने तलबा को दिए जाने वाले खाने की सहूलत और खाने के म्यार का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा सरपंच वेंकटेश, नायब सरपंच प्रताप गौड़ व दीगर मौजूद थे। వాటి మీద శ్రద్ధ పెట్టుకుని వేరే డబ్బులు కూడా వాళ్ళకి డైవర్ట్ చేసి జీతాలు ఇచ్చి వాళ్ళకి పాఠశాల సుందరంగా తయారు చేసుకుని వాళ్ళు మనవడి పనులను కంప్లీట్ చేశారు। కాంపౌండ్ కూడా అయిపోతే ఈ పాఠశాల మంచి మోడల్ స్కూల్లా తయారవుతుంది। रियासती हुकूमत खदीर खान के ऊपर जुल्म करने वाले और मौत के जिम्मेदार खातियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जमीयत उलमा भीमगल की जानिब से सब इंस्पेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया और अब्दुल खदीर के अफराद खानदान को एक्स ग्रेशिया का मुतालबा किया। जमीयत उलमा भीमगल की जानिब से आज एक वफद जिसमें सदर जमीयत उलमा मौलाना जमील बेग साहब की क़ियादत में सब इंस्पेक्टर पुलिस राज भरत रेड्डी को एक मेमोरेंडम हवाले किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि मेदक में अब्दुल खदीर नामी शख्स को पुलिस की ज्यादती की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई थी। इसमें मुतालबा किया गया कि खाती पुलिस ओहदेदारों को सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर मौलाना जमील बेग ने खिताब करते हुए कहा कि मेदक जिले में अब्दुल खदीर नामी शख्स के मुतवफ़्फ़ी खानदान को एक्स ग्रेशिया दी जाए और उनको डबल बेडरूम और खानदान के एक फर्द को गवर्नमेंट मुलाजिमत दी जाए। इस मौके पर उनके हमरा नायब सदर जमीयत उलमा हाफिज मोहसिन अजमतुल्लाह, रुकने मुआविन बल्दिया मोहम्मद जावेद, टीआरएस कायद ताहिर हुसैन, अब्दुल रहमान एडवोकेट, मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर जर्नलिस्ट, मोहम्मद मुखिद जर्नलिस्ट, हबीब कुरैशी, मोहम्मद अलीम और मोहम्मद अत्तर जर्नलिस्ट के अलावा दीगर मौजूद थे। जनाब हाफिज मोहम्मद अयूब खान साहब सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद की ईमा पर आज हम लोग जनाब सरकार साहब की खिदमत में मेमोरेंडम देने के लिए हाजिर हुए हैं। आज से चंद रोज़ कबल जनाब अब्दुल कदीर साहब, जिनकी पुलिस हिरासत में मौत वाक़ हो गई थी, उसकी बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, कोई उनके बच्चों पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला नहीं है। लिहाजा हम लोगों का हुकूमत तेलंगाना से मुतालिबा है कि बच्चों की किफ़ालत के लिए, बीवी के गुज़र बसर के लिए हुकूमत एक अच्छी रकम के ज़रिए से उनकी इमदाद करे और उनके अहलिया को नौकरी दे, सरकारी मुलाजिमत दे
ताकि वो बेसुकून से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। आरमूर हल्के में मेरू संगम की क़ियादत में बाइक रैली का एहतमाम। इस रैली में मामड़ीपल्ली क्रिकेट के मेरू संगम के अफराद ने शिरकत की। यह रैली हल्के के मुख्तलिफ चौराहों का अहाता करते हुए गुजरी। आरमूर मंडल में मेरू संगम की जानिब से टेलर डे के मौके पर एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में मामड़ीपल्ली क्रिकेट और आरमूर हल्के के मेरू तबके के अफराद ने हिस्सा लिया। ये रैली मुख्तलिफ चौराहों का अहाता करते हुए गुजरी। इस मौके पर मेरू संगम के मंडल सदर राजुला देवी रविनाथ ने बताया कि रियासती हुकूमत मेरू संगम के मसाइल हल करे। मेरू संगम आज बेशुमार मसाइल का शिकार है। मार्केट में तैयार करदा मालबूसात का चलन आम हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा काम ठप होकर रह गया है। हमारा गुजर बसर सिलाई पर मुनासिर है। सिलाई ना होने की वजह से हमारा गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा रियासती हुकूमत दिगर तबकात की फलाह बहबूद के लिए स्कीमात मुतारुफ की गई है, उसी तरह हमारे तबके के लिए भी स्कीमात फराहम करे। इसके अलावा 60 साल उम्र के अशखास के लिए एज पेंशन अदा करे। इस प्रोग्राम में मेरू संगम सदर रघुनाथ, मरकजी सेक्रेटरी डी लक्ष्मण, गंगाधर व दीगर मौजूद थे। मेरू संगम ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టైలర్స్ డే సందర్భంగా ఆర్మూర్ పట్టణంలో ఆర్మూర్ మండల గ్రామ ప్రజల తరఫు నుంచి ఆర్మూర్ పట్టణ గ్రామం తరఫు నుంచి మేరు కులస్తులందరూ ఈ రోజు బైక్ ర్యాలీ తీయడం జరిగింది। జంబి హనుమాన్ నుంచి మామిడిపల్లి పెరికెట్ తర్వాత కింది బజార్ మీది బజార్ ఈ పూర్తిగా మేరు సంఘం యొక్క ఆధ్వర్యంలో టైలర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క బైక్ ర్యాలీ తీయడం అనేటువంటి జరిగింది। ఈ రోజు మేరు సంఘ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ టైలర్ దినం పురస్కరించుకొని మా మేరు ఆర్మూర్ మండల వ్యాప్తంగా ఆర్మూరే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతం అంటే ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం నుంచి పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఆర్మూర్ పాత బస్టాండ్, కొత్త బస్టాండ్, పెరికిట్ మాడిమి మీదుగా పెద్ద ఎత్తునగా భారీగా ప్రపంచం మేరు సంఘ ఆధ్వర్యంలో ఇలా యావత్తు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మేరు సంఘం టైలర్స్ డే ఆధ్వర్యంలో మేము అందరం కదలడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆర్టీఓ గారు కూడా మెమోరాండం ఇస్తాము। साइंसी नुमाइशों के जरिए तलबा की सलाहियतें उजागर होती है। तलबा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए रियासत व जिले का नाम रोशन करें। शहर की मेयर नीतू किरण ने तलबा को दिया मशवरा। उन्होंने साइंस फेयर नुमाइश में शिरकत करते हुए लुत्फ अंदोज हुई और बेहतर मुजाहिरा करने पर तलबा की खूब सताइश की। कौमी यौम साइंस के मौके पर श्री चैतन्य स्कूल में साइंस नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शहर की मेयर नीतू किरण ने शिरकत की और तलबा के बनाए गए एजादात व तजुर्बात का जायजा लिया और बहुत मुतासिर हुई और तमाम तलबा की सराहना करते हुए हौसला अफजाई की। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने तलबा से मुखातिब होते हुए बताया कि साइंस नुमाइशों से तलबा को स्कूल सतह पर नई एजादात से बहुत मदद मिलती है और तलबा की सलाहियतें उजागर होती है। तलबा भी तालीम के तई लापरवाही व गफलत न बरते, तालीम के साथ साथ नए एजादात पर अपना जहन लगाते हुए अपनी सलाहियतों में इजाफा करे। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल प्रवीणा, रीजनल इंचार्ज राजू, कोऑर्डिनेटर नरेंद्र, स्कूल अमला व दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत कबायली तलबा व तालिबात पर हो रहे हमलों व हरासा और ज्यादती के मामलात को रोकने के इक़दाम करे। बोधन में गिरिजन तलबा तंजीम का मुतालिबा और रास्ता रोको एहतजाज। बोधन गिरिजन तलबा तंजीम के जेर क़ियादत वरंगल में वाक़ काकतिया मेडिकल में सीनियर तालिब इल्म के रैगिंग की वजह से पीजी मेडिकल तालिबा प्रीति नायक फौत होने पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बोधन रेलवे कमान पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया। इसके बाद बोधन आड़ियों को एक इंसाफ के मुतालबे पर मबनी एक याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के इंचार्ज जादव ने बताया कि प्रीति नायक पर रैगिंग और हरासा करने वाले मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि कोई और लड़की इस जुल्म का शिकार न हो और हुकूमत से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि कबायली तलबा पर हो रहे हमलों को रोके। इस मौके पर एसोसिएशन के मेंबरान साई कुमार, बाबू नायक, रवि कुमार व दीगर तलबा व तालिबात मौजूद थे। फैसल शहर के गड्डेना वागू प्रोजेक्ट के करीब में रोड पर प्रकाश नामी शख्स एक टेन शेड तामीर कर रहा था। उसी असना में प्रकाश हादसाती तौर पर बिजली के तारों के जद में आ गया और बुरी तरह झुलस गया, जिसे इलाज के लिए शहर के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया। जिला निर्मल के भैंसा शहर के प्रकाश जो गड्डेना वागू प्रोजेक्ट रोड पर एक टीन शेड तामीर कर रहा था, अचानक वहां पर मौजूद बिजली के तारे खराब होने के नतीजे में प्रकाश बिजली के तारों की जद में आने से बिजली का झटका लगा, जिसकी वजह से उसका जिस्म शदीद झुलस गया, जिस पर मुकामी लोगों ने एम्बुलेंस के जरिए मुतासरा को इलाज के लिए भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां पर एरिया हॉस्पिटल अमले की जानिब से उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। लेकिन जो हालत बिगड़ते देखकर एरिया हॉस्पिटल डॉक्टरों ने उसको बेहतर इलाज के लिए निजामाबाद के दवाखाने को मुंतकिल कर दिया।
इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अवाम टीवी ने सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायका को फखरे निजामाबाद अवार्ड पेश किया था। मौलाना जाफर पाशा उस्तामी ने उनको निजामाबाद का हीरो कहते हुए अवाम टीवी के मौक़िफ़ की हिमायत की। मक्का मस्जिद में 40 दिन तक नमाज फज्र अदा करने वाले कमसिन बच्चों के लिए इनामी प्रोग्राम। बेशुमार बच्चों ने बाकायदगी से नमाज अदा की। हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद बिला नावा नमाज फज्र अदा करने वाले मोहम्मद फुरकान सबकी मरकज़े निगाह बने। सड़क हादसात के तनासुब में इजाफे पर जिला कलेक्टर निजामाबाद की तशवीश। उन्होंने कहा कि पुरखतर इलाकों की निशानदही की जाए और हिफाजती इंतजाम करते हुए आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और ट्रैफिक क़वानीन पर सख्त अमलावरी की जाए। दिया निजामाबाद दुर्गा प्रसाद का दौरा मौजा दुबाक। उन्होंने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जारी तामीरी कामों का लिया जायजा और सहूलतों की तफसीलात मालूम की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।